Vishwasai. Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. Gyanantva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavinamupavasravastamam Jyeshwarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunvannotibhissedasadanam Prado Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vitriyavatu Shri Mahaganathipataye Namaha Shri Mahasaraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. नमस्कार। बाबा के दर्शन करने का आनंद निराला है, क्योंकि जब बाबा हमारी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, और न केवल बात कर रहे हैं बल्कि बाबा हमारे भीतर की चिंताओं को समूल नष्ट भी कर रहे हैं। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ परब्रह्मणे नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. There is only one truth. Intelligent people may call it by different names. Vasudhaika Kudumbam. Vasudha means earth, Eka means one, Kudumbam means family. The people who are living in the world on the earth belong to only one family. That is the heart beating of Mother Earth. पाशांकुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। सभी 3 बार श्री साईनाथाय नमः बोलना। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्लीज फॉलो। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हरि ओम। This joy of relating to the divine and also experiencing the joy which is pure in its nature because of the unpolluted flow of love that is showered by the gaze, the very gaze of Shirdi Sai Baba. तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया
साईनाथ तेरे हजारों हाथ। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। नानक की मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। नीम करेगी मीठी छाया, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तू चाहे तो टल जाए घाट, तू ही भोला तू ही नाथ, तू ही भोला तू ही नाथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। All rashis are being influenced by the one and the only one which is sustaining the whole existence. ॐ ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् इहैवैधिमाव्यधिष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्नो इन्द्र एणमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु
सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यफलसिद्धिरस्तु. We also recollect Vishwayogi Vishwamji Maharaj, whose very presence, as he says, is Guru is more than mother, Guru is more than father. Om Shri Sai Ram Gurudeva Datta. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. 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 Sri Sai Nath Jai. Shirdi Sai Nath Jai. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. Sri Sai Nath Jai. Sri Sai Nath Jai. I am keeping all of you in my heart. Why? Because you are doing the Sai duty perfectly with dedication and devotion. So anything happens in United States of America, reflect the whole world and shake the whole world. Good. What is the heart beating, doctor? Knowing? Lubbed up, lubbed up, lubbed up. Aurora can tell. Lubbed up, lubbed up, lubbed up. Not lubbed up. Love peace, love peace, love peace, love peace. The heart beating. Heart is India. Bharat Mata ka Hriday Spandan. Love peace, love peace, love peace. Mother India is asking, Mother Earth. Heart is Mother India asking to spread love and peace. So, the whole world is now looking at India. Now, see what is happening in the whole world every day. Earthquakes, tsunamis. Why? Because, listen to me carefully, only 5 minutes. This is my message today. This is my appeal to each and every intellectual, each and every leader of the nation. That's why I am wandering like a madman from country to country, state to state, city to city, house to house, to clarify this and to bring this to each and every heart. What is that? Earth is a magnet. Magnet field is there. That is climate. In the earth and around the earth also, earth is the composition and combination of 5 elements: soil, water, fire, air and space. If the 5 elements are in proper ratio, then the earth will be in a peaceful condition. Now, there is imbalance among the 5 elements. The struggle began among the 5 elements. That is the main reason for natural calamities. Imbalance is main reason. What is the reason for the imbalance? Pollution. We are polluting the soil, water, fire, air and space. So, first and foremost duty of each and every person who is living in the world to keep the Mother Earth away from pollution, the 5 elements away from pollution. If Mother Earth is not in good condition, we have to suffer a lot. Now Mother Earth is in great danger. So we have to think about the Mother Earth. We are thinking about the religion. We are thinking about the country. We are loving our religion. We are loving our country. And we are ready to fight also for the name of religion and country also. But we are neglecting the Mother Earth, which is the base for all the nations and for all the people. So, Sanatana Dharma, the ancient Indian Sanatana Dharma, the yogis, rishis declared to love the Mother Earth. Samudra Vasane Devi, Parvatastana Mandale, Vishnupatri Namastubhyam. Early morning, when we wake up, if we want to put the foot on the earth,
We have to bow. Even the dance learning girl also doing namaskar to the earth and then begins to dance. That is our custom. और अब समय है श्री साई चरित्र पारायण को आगे बढ़ाने का। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। ग्रंथ सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। साईनाथ अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वो उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगाकर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न कुछ करके केवल अपनी मां का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोला। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बापा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। ये मिश्री हेमाड़ पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड़ पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की, प्रभो इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर, नित्य मनन और निधिध्यासन कर, तत्व को ग्रहण कर, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वो स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाड़ पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें और उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 19वें अध्याय के अंत में हेमाड़ पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन दिया है जो यहां दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया जाए तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालन विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्रीहरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद द्वैत की दीवार नष्ट कर दो जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव यानी मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्गदर्शन कर
सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर, एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण हैं तब तक जीवित हैं। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाएं तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड़ पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वे दीक्षित का बाड़ा पार कर बूटी बाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एक नाथ का ये भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा, जागत रामा सोवत रामा, जहां देखे वहां पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहां देखे वहां राम सरीखा। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर ये भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या ये बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या ये हेमाड़ पंथ के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। अक्सर देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त हैं, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लैंडी बाग के समीप उससे भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली कर उससे कहा कि देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के जैसा है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उसका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे
तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में निमग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र और नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूं। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन तो किसी को अध्यात्म रामायण और ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन और अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा और अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने और छांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेश की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका आभार। साई राम। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। निरंजनी सद्गुरु स्वामी स्वामी सुखे निराकरा अवधूता बाबा करा साईनाथा मयने सुखधाम जाऊनी उड़ाई कांता साईनाथ महाराज की जय। श्याया बाबा नानक दुष्याया निरंजनी सद्गुरु स्वामी जबिलसी प्रिया स्वामी सुखे निराकरा अवधूता बाबा करा साईनाथा मयने सुखधाम जाऊनी